और पांव धोने के बाद and put on his outer robe. और सारे कपड़ों को रख दिया, He sat down at the table again and said to them, "Do you understand what I have done to you?" और दोबारा वो बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? You, the bride of Christ, have you understand what the master have done here? या दुल्हन, आप दुल्हन, गुरु जी ने जो किया समझ गया आपने? You call me master and Lord, तुम कहते हो तुम गुरु गुरु है प्रभु कहते हो, and rightly said, for I am also. यस भला कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। When I, the Lord and Master, have washed your feet, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, you also shall wash one another's feet. तो तुम भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, For I have given you an example, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है that you also do as I have done against you. कि जैसे मैंने तुम्हारा साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। Verily, I say unto you, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, the servant is not greater than his master, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, nor the messenger greater than he sent him. और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। If you know this, you will be blessed when you do it. तुम तो ये बात जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। What point in what I go in right now एक पॉइंट में मैं जाना चाहता हूँ अभी, is what Peter says. और पीटर पौलुस कहता है He wants that the master don't wash his feet, चलिए पौलुस चाहता है कि गुरु जी के पांव ना धोए, that Jesus don't wash his feet. चलिए यीशु मसीह इनको पांव धोना चाहता है। But Jesus answers, if I don't wash your feet, we have no community with each या other. यीशु मसीह कहते हैं यदि इसमें आपको पांव ना धो तो मेरे साथ तेरा कुछ भी भाग नहीं। If I don't wash you, we can have a relationship with या you. यदि मैं तुमको धोऊंगा नहीं तो हमारा दोनों के बीच में रिश्ता नहीं होगी। Before I have created the world, my heart wants to have an intimacy with you. या जो जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि मेरा दिल तेरे साथ नजदीक से ना संगति करे। So the Bible says in Peter that we are newborn to the water birth of the Word of God. इसलिए पौलुस भी कहता है कि स्नान के द्वारा बपतिस्मा के द्वारा हम नया जन्म पाया है। In the Spirit, we are completely new, लेकिन आत्मा में हम बिल्कुल नया है। completely pure, हम आत्मा में संपूर्ण रूप से शुद्ध है, completely holy, संपूर्ण तौर से हम शुद्ध हो। because we are in Christ Jesus our Lord. क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं, हम प्रभु में हैं। And Christ, Lord Jesus, is in us, यीशु मसीह हम में हैं, and we are through Him in God. उनके द्वारा हम पिता में हैं। But sometimes we step in sin. लेकिन कभी-कभी हम पाप में गिर जाते हैं। Who knows that he steps sometimes in sin? Please put your hands here in the air. Actually, यदि आप I sin sometimes. What's with you? या actually बहुत बार हम लोग गलती कर लेते हैं, पाप कर लेते हैं, ऐसे कोई तो हाथ करके दिखाएगा। Put your hand in the air if you sin sometimes. Yes, बहुत बार हम गलती करते हैं। If you don't put your hand in the air right now, then you are a liar. क्योंकि यदि हाथ नहीं कर रहे तो आप झूठ बोल रहे हैं। And the truth is not in you. क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है। And then you say God spoke the lie, speak the lie. या तो आप बोले कि परमेश्वर झूठ बोल रही है, तो आप झूठ गलती करते हैं। And the way is written here, He's the way, He's the truth, and the life. पिता यीशु मसीह ही मार्ग सत्य जीवन है। And nobody can come to the Father only by Jesus. यीशु के बिना कोई मेरे पास नहीं आ सकता। And it's the way of the truth. इसलिए ये रास्ता सच है। And the way in what you can say, I'm a sinner, लेकिन आप बोले कि प्रभु मैं पापी हूँ and I need the grace of God. और I need the grace of God. प्रभु मेरा अनुग्रह मुझे चाहिए। The grace of His blood. एक्चुअली ये प्यार और अनुग्रह चाहिए। Forgiveness through His blood. यस उनकी प्यार के द्वारा हमें क्षमा चाहिए। The blood of Jesus applied for you. या क्योंकि परमेश्वर का लहू आपके लिए बहाया गया है। For what? क्यों? इसके लिए To wash your feet when you step in sin. तुम्हारे पाँव को धोने के लिए, पाँव को शुद्ध करने के लिए। Because everybody of us steps sometimes in sin. या हम में से सब लोग कभी न कभी गलती करते हैं।
And then we need to grace the forgiveness of Jesus in His blood. इसीलिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप की क्षमा चाहिए। And if we say, yes, I have sinned, please forgive me, Lord, यदि आप बोलेंगे प्रभु मेरा अंदर पाप है मुझे क्षमा कीजिए, then He will forgive. वो क्षमा करता है Because He's righteousness. क्योंकि वो धर्मी है। Again, that means to have intimacy with Jesus. इसीलिए आप यीशु मसीह से रिश्ता होना चाहिए, संगति होना चाहिए। When you let Him to wash your feet when you have sinned. लेकिन जब हमारे पाप के बाद हमारा जो पाप है तो प्रभु हमारे पापों को धोता है। When you let Him love you. जब आप उससे प्यार करते हो तो वैसे प्रभु को मौका देते हो पापों को धोने के लिए। And when you do the same what you have done. लेकिन प्रभु जैसे किया है वैसा आप भी करना है। Because He says, when I have washed your feet as your master, you also should wash each other's feet. प्रभुओं के गुरुओं के मैं तुम्हारा पाँव धोया तो तुम भी ऐसे करना चाहिए। I have left you a role model. मैंने आप लोग एक नमूना छोड़ा। The servant is not greater than his master. कोई भी दास अपना स्वामी से अधिक नहीं होता, बड़ा नहीं बनता। No, the messenger is greater than he sent him. एक्चुअली पता है जो भेजने जिसको प्रभु भेजा है भेजने वाला से बड़ा नहीं होता। If you know this, you will be blessed when you do it. क्या यदि आप ऐसे करोगे तो तुम धन्य हो। Have you read it? सुन रहे हो बाबा? You are blessed when you do the same what Jesus has done. यीशु मसीह ने जो कुछ किया है वैसा हम भी करेंगे तो हम धन्य हैं। When you not only hear the voice of God, जब हम प्रभु का आवाज सुनते हैं, when you do what the voice of God says, या यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया है तुम वैसे करोगे तो then you will be blessed. आप तो धन्य हैं। In Jacobus chapter 1 verse 22 till 25. याकूब पहला अध्याय 22 और 23। But be the perpetrators of the word. Yeah. I have also sent it to you. You don't must go in the Bible and send it. Yaakov 1. Or WhatsApp I have sent it to you. Yaakov 22. I have sent it to you on WhatsApp. You have it here. In India. Yeah, I'm sorry. So, James chapter 1. Chapter 1 verse 22 till 25. Yeah, 22. Anyone can read? But be the वचन पर चलने वाला बनो और केवल सुनने वाला ही नहीं। And not just listeners who deceive themselves. या केवल सुनने वाला ही नहीं और चलने वाला बनो। For he who is only a listener of the words. या वो अपना धोखा मत दो क्योंकि वो जो कोई वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो And not a perpetrator. It's like a man who looks at his natural face in the mirror. या उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। He looks at himself and runs away. अगर वो देखेगा भाग जाएगा। And has soon forgotten how he was designed. और पता करो वो भूल जाता है कि वो कैसा था। But whoever looks into the perfect law of freedom and remains in it. और जो व्यक्ति स्वतंत्रता की इस व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, this man who is not forgetful, listener. वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वो सुनकर भूलता नहीं और वैसे ही काम करता है। But a real perpetrator. Yes, जैसे वो वैसे काम करने वाला है। He will be blessed in his actions. तो वो अपने कामों में आशीष पाएगा। Jesus says again through Jacobus. जैसे याकूब के द्वारा दोबारा यीशु कहता है। Who is not a forgetful listener, but a real perpetrator. He will be blessed in his actions. या सुनकर भूलता नहीं पर वैसे ही काम करता है, वो जरूर आशीष पाता है। You are blessed in all of your ways, but do not forget what Jesus said to you. जो यीशु मसीह ने जो कुछ कहता है, अगर वैसे ही करेंगे तो हम सचमुच में आशीषित होंगे। When you are a real perpetrator, यदि आप करने वाला हो तो धन्य हो। when you wash the feet of your brother, यदि आपके भाई का पाँव धोएंगे तो, when you wash the feet of your sister, और आपकी बहन के पाँव धोएंगे तो धन्य हो। that means इसकी मतलब to love प्यार करना, with a purified heart. एक दिल को शुद्ध करना। Because the Bible says बाइबल कहता है that the love of God परमेश्वर का प्रेम is flowing into our hearts through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा अंदर बहता है। And this love, what is in our hearts,
ये प्यार हमारे दिलों में will to go outside इसे अंदर बाहर में बहना चाहिए। to your sister and to your brother. ये जो ये आपका भाई के पास और आपकी बहन के पास, आपका भाई के द्वारा बहन के द्वारा भी बहना चाहिए। Because Jacobus 2 verse 17 says, क्या याकूब 2 का 14 का 17 और 17 कहता है, so it is with faith. If he has no works, he is dead या in and for himself. या यदि आप उठाकर विश्वास करते हो, अगर काम नहीं करते हो तो विश्वास मुर्दा है। If you say, I believe in Jesus and he is my Lord, जब यदि बोलेगे मैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है, आप कहते हो मैं विश्वास करता हूँ, then you must do what he have done. ये प्रभु ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया तुम्हें वैसे करना है। The faith is active through love. यह जो विश्वास प्यार के द्वारा प्रकट किया जाता है। Your faith is effective through the love of God, what is in you. या आपका विश्वास जो है कि प्रभु के प्रेम के द्वारा प्रभावित करता है। What have Jesus said? और यीशु मसीह ने कहा है, Love each other like I have loved you. ये जैसे मैंने प्रेम किया वैसे एक दूसरे से आप प्यार करो। That is the biggest command. ये सबसे बड़ी चीज है। The love of the lost. तो एक्चुअली खोए के प्रति प्यार। If you don't love, यदि आप प्यार नहीं करोगे, then you don't know God. एक्चुअली Then you don't know God. क्या ईश्वर को जानते हो नहीं? Because God is love. परमेश्वर प्रेम है। And everybody who stays in love कोई भी प्यार में बने रहता stays in God. प्रभु में बना रहता है And God stays in him. और परमेश्वर इसमें बने रहता है। No, Jesus says, love each other how I love you first. ये यीशु कहता है कि एक दूसरे से प्यार करो क्योंकि पहले मैंने तुमसे How did he love us? कैसे प्यार किया हमसे वो? Let us read. पढ़ेंगे। In Philippi, फिलिप्पी chapters 2 from verse 5 till 11. या 2 का 2 से 5 से 11। फिलिप्पी 2 का 5 से 11। It's written about Jesus. यीशु उसके बारे में कहा है। There's written, for you shall be so minded as Christ Jesus was. जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। You must be minded like Jesus was, जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा हमारा भी होना चाहिए। यीशु को मानना बराबर होना चाहिए। who, when he was in the form of God, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी did not hold it like a robbery to be like God, या परमेश्वर तुल्य होने का प्रवचन में रखने की वस्तु नहीं समझा, but he devised it himself, वरना अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया assumed the form of a servant, और दास का स्वरूप धारण किया and became like a man. और मनुष्य के समान हो गया। And his outward appearance as an invited man, या और मनुष्य रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया he humbled himself और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। and became obedient to death, यह आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सहा even to death on the cross. और क्रूस की मृत्यु भी सहनी। That is why God has exalted him above all measures इस कारण परमेश्वर उसके अति महान भी किया and given him a name above all names, above all our names, या उसका नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। so that in the name of Jesus all knees इसीलिए स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। of those are in heaven या स्वर्ग में and on earth और या धरती में and under the earth और पृथ्वी के नीचे may bow down, या यीशु के नाम में सब झुके and all tongues और सब लोग उसके सामने नाम झुके। confess परमेश्वर की पिता की महिमा के लिए that Jesus Christ is the Lord, सारे जीवन की कर रहे कि यीशु मसीह ही for the glory of God of the Father. जैसे यीशु मसीह की पिता की महिमा के लिए अंगीकार करें। Let us confess all together Jesus Christ is Lord. इसलिए आप सब अंगीकार करें कि यीशु भी प्रभु है। Right now, let us confess all together आप सब लोग मिलकर अंगीकार करें यीशु by three. 1, चलो बोले 2, 3. Yes, Jesus Christ is Lord. यीशु भी प्रभु है बोलेंगे। Come on! हालेलुया For the glory of God. हालेलुया। I don't understand that. Jesus is the King of Kings, यीशु राजाओं का the
on his throne and can say, I don't want to go on this earth with all this pain and all this, yes, with all these problems and darkness. मैं नहीं जाऊंगा यार, ये मान लिया कि मुझे मंगल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा, है ना? ये नहीं बोलेगा कि ये क्या लोग ये पाप में दिल्ली जाता है, ये बहुत परेशानी है, ध्यान से मेरा था, इनको मैं जाऊंगा नहीं। But he loves you, his bride, so much ये तो वो हमसे बहुत प्रेम किया, इसने सिंहासन छोड़ दिया, that is God, come on this earth, ये परमेश्वर धरती पे आ गया, and he lived a life without sin. देखिए वो ऐसा जिंदगी जिया, शुद्ध जिंदगी, बिना पाप के रहित जीवन जिया, And he shows us वो अपना को दिखाया हमें, what is love. उसने दिखाया कि प्यार क्या होता है। Because so many people say, I love you. बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, But in what way he shows you that he loves you? लेकिन ये कोई भी ऐसा प्यार नहीं, यीशु उसने प्यार करके दिखाया है, With bad words, और उसने एक दूसरे के प्रति आदर किया, with bad works. और बातों की इज्जत करना, Is that love? बाकी इज्जत करना प्यार नहीं ना। When I lie you, जब मैं तुमको झूठ बोलता हूँ, when I steal what you have, मैं तुम्हारे पास जो भी मैं देखता हूँ, when I kill you, अगर मैं तुमको मार दूँ, is that love? ये प्यार है? ये तो आपका सामान चोरी कर लूँ, I don't believe in it. प्यार है? I don't believe in humanistic love. या इसमें इंसान के प्यार पर भरोसा नहीं रखता हूँ। I believe in the love of God. What is eternal love? यह केवल यीशु के प्यार में, पिता के प्यार में विश्वास करता हूँ कि वो सच्चा प्यार है। Jesus, the King of Kings, and he come on this earth as a servant. यह यीशु मसीह राजा का राजा, प्रभु प्रभु के धरती में आपके लिए आया है। Are you hear that? As a servant. God come on this earth and serve us as a servant. यह परमेश्वर सेवक बन के आया है, And he washed our feet. और वो हमारे पाँव को धोया। I can understand Peter. पीटर, पतरस, मैं समझता हूँ। When I will sit there on the chair, Jesus, the King of Kings, come to me, my teacher, my everything and all, comes to me and says to me, I want to wash your feet. जाकर मैं कुर्सी पे बैठूंगा, मेरा राजा, मेरा गुरु, मेरे पास आके बोलेगा, मैं तुम्हारा पाँव धो लूँ। Then I will sing in the same way. I will wash you your feet. I'm your servant. यह के लिए मैं भी ऐसे ही बोलेगा, प्रभु मैं तुम मेरे पाँव मत धो, मैं तेरा पाँव धोऊंगा, तो मैं भी तेरा सेवक हूँ। But what Jesus has said to लेकिन us, यीशु मसीह ने क्या किया, क्या कहा? I have given you an example. मैं तुम्हें एक नमूना दिया। Do the same, go on the same way in what I have lived या with. मैं जैसे किया वैसे ही तुम करो जाकर, Because I am the way. क्योंकि मैं मार्ग हूँ। What that means? क्या मतलब है ये? Follow me. मुझे Follow my footsteps. और मेरे कर्मों को पीछा करो, And love like I have loved you. जैसे मैंने प्यार किया वैसे प्यार करो। Jesus died for us at the cross. क्रूस पे यीशु हमारे लिए मरा। We all have sinned. हम सब ने पाप किया, But the judgment from God was over him at the cross. लेकिन क्रूस पे न्याय हो यीशु मसीह आए। Jesus was judged for our sins. हमारा पापों के लिए यीशु मसीह ने सजा उठाया, That we can have now eternal grace and eternal forgiveness for our sins through his blood. ताकि हम अनंत की अनुग्रह और शाश्वत कृपा और शाश्वत शांति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए दे दिया। And God the Father resurrected him at the 3rd day लेकिन तीसरे दिन पिता परमेश्वर ने यीशु को जिंदा कर दिया। and give him a place to his right side. या दूसरे क्या कहते हैं, दाहिनी तरफ बिठाया पिता ने यीशु को। Because everybody here in this room who goes down या इस रूम में जितना भी लोग हैं जो प्रभु के सामने नहीं झुकने देखेंगे, and worship feet from the brother and the sister और भाई और बहनों को जो पाँव धोएंगे in love, प्यार में, God will rise you up. दिल पर God will rise you up. ये परमेश्वर को उठाएंगे, Because God wants to bring you in a high position. या परमेश्वर को चाहता है कि ऊंचा स्थान में ले जाए। Why? वाह, क्यों? For his glory. परमेश्वर को महिमा के लिए, Because he wants to bring his name in a high position in this world. ये परमेश्वर उनके नाम इस दुनिया में ऊंचा करना चाहता है। You are the light of this world. आप इस धरती का ज्योति हो, हालेलुया। Because Jesus has said, I am the light of the और world. यीशु कहते हैं कि मैं जगत का ज्योति हूँ।
And everybody who follow me सब कोई मेरे पीछे हो जाएगा, will have the eternal life. इसको आनंद जीवन पाता है, जीवन में ज्योति पाएंगे। I will show you the way. मैं रास्ता दिखाऊंगा। I will show you in what the I will show you my footsteps and you can follow them. मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा और मेरे कदमों पे चलोगे। And when you do this, अरे वो ये when you say yes to this call प्रभु को हाँ प्रभु मैं करूंगा, to follow Jesus, यीशु को पीछे करोगे, to be the light of this world, तुम ये धरती के लिए ज्योति बन जाओगे, to be a servant, to go down भीम ना होके इनके सेवक जैसे काम करोगे, and to wash the feet of the sinners अगर लोगों के पापों को धोएगा, पापों को धोएगा, with the blood of Jesus and the gospel of Jesus Christ, और ये यीशु का खून और यीशु का समाचार, then people will getting saved like we are saved और बिल्कुल ये नहीं क्या हम उद्धार पाया through love, प्यार के द्वारा, and the name of God will be praised. ये परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाएगा, And God will be in your life. और परमेश्वर आपके जीवन में रहेगा। But if you want to be high यदि आप अपने आप को ऊंचा करना चाहते हो, and you don't wash the feet अगर लोगों के पाँव नहीं धोएगा तो, and you don't want love या अगर तुम प्यार नहीं किया तो, and you don't want to be the light and to follow the call of Jesus, ये आप यदि आप जगत की ज्योति बनना नहीं चाहते हो, यीशु को पीछे नहीं करते हो, then God will put you down. परमेश्वर को नीचे क्या है? Because everybody who goes down ये जो लोग नीचे जाएगा, will be raised up. ऊंचा किया जाएगा। But everybody who goes high, जो लोग ऊंचा अपना को करता है, I want to be in Christ, मैं बास बनना चाहता हूँ, God will put वो down. परमेश्वर नीचे करेगा। So let us love like Jesus loved. इसलिए यीशु मसीह जैसा अपना आप समर्पण करना प्यार में, Let us follow the example of Jesus has given इसलिए us. यीशु की पहुंच में चलना है हम, The King of Kings, who goes much down than everyone. जब यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा अपना को दीन किया है, And let us have joy because ऐसे खुशी पाएंगे आप, क्योंकि in the book of Revelation, chapter 19, प्रकाश वचन अध्याय 19 में verse 7 to 9 is written. 7 से 9 तक लिखा है, Let us be happy and cheer and give him the honor. अब हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, For the wedding of the Lamb has come, क्योंकि मेमना का विवाह पहुंचा है and his wife has prepared herself. और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, And it was given to her to dress in fine canvas, उसकी शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दे दिया है। pure and shining. For the fine उस महीने canvas, मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों का धार्मिक काम है, in the righteousness of the saints. एक्चुअली धर्मी लोगों का काम है ये। And he said unto me, White, blessed are those who are called to the wedding of the Lamb. या तब स्वर्गदूत से कहा, ये लेख की धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। And he said to me, These are the true words of और God. उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। I believe that what I speak here right now in the name of Jesus are the true words of God. क्या आप विश्वास करते हो? तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, ये सत्य है, ये सत्य का वचन है। Come on and say yes with me. यस बोले Yes, हाँ, Jesus. बोले हाँ जी। Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। God says to us, be happy. प्रभु कहते हैं कि आनंदित हो, Be happy all the time. हमेशा आनंदित रहो And be thankful और स्तुति करो in all circumstances. और हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दो। Because there's raining our Lord to marry us. एक्चुअली क्योंकि वो इंतजार में दुल्हन लोग की शादी के ब्याह में जाने के इंतजार में, He will dress us in fine colors and in the righteousness of the saints. एक्चुअली मतलब आप मखमल का कपड़ा पहनोगे, चमकीदार कपड़ा पहनोगे, वो धर्म का काम है। You know why? आपको मालूम है क्यों? Jesus was our sins at the cross. यीशु मसीह हमारा पापों को क्रूस पे है ना मिटा दिया।
that we can be the righteousness of God through believing and confess that Jesus Christ is Lord. या यीशु मसीह ही प्रभु का विश्वास करेंगे तो हम पिता का ईश्वर का धार्मिकता बन जाएंगे. He waits for us. इसीलिए वो His heart waits so strong for us because He loves us so much. या जो परमेश्वर का दिल से वो हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए हमको उठाना चाहते हैं. His heart waits to marry us. या उनके दिल इंतजार में है आपके लिए, मेरे लिए, ताकि आप और मुझको दुल्हन के रूप में ग्रहण करें. This can be your joy. ये हमारा सत्य, ये खुशी की बात है. Let us follow Jesus in this way. इसीलिए दुनिया का यीशु को पीछे करेंगे To go down और नीचे दीनता में आएंगे, like He was going down. और दीनता में आएंगे. That He can rise up and resurrect it up on the day what He has created for us in which we married Him. या जब दुल्हन के समय में जब ब्याह की टाइम में, पार्टी की टाइम में प्रभु क्या करेंगे, हम लोग उनसे उठाएंगे यदि हम दीनता में आएंगे तो. So be blessed in the name of Jesus. और यीशु मसीह के नाम पर आशीष के. Amen. 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 ताली बजाओ तो praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया. आइए हम सब प्रार्थना करते हैं, प्रभु से तुम ये प्यार हमें चाहिए. पता है हम क्या होता है कि हमेशा दूसरों को छोटी नजर से देखते हैं, छोटे दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं. हम ऐसा नहीं करना. यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु मसीह को मालूम है पतरस 3 बार क्या बोलेगा, झूठ बोल देगा, लेकिन पतरस को प्रभु ने धोया. प्रभु क्या कहता है, जैसे मैंने किया वैसे आप भी करना. इसलिए